بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب اپنی خلافت نائبی کے لیے اللہ کا ارادہ ہو کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تب حضرت اسرائیل کو حکم ہوا کہ ہر قسم کی لال، سفید اور کالی ایک مٹھی رنگا رنگ مٹی جمع کر کے لائیں، اور اللہ کے حکم کے مطابق مکہ اور طائف کے درمیان رکھی۔ اللہ نے اس مٹی پر اپنی رحمت کی بارش کی اور اسی مٹی کے خمیر سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا۔ 40 برس تک وہ پتلا بے جان پڑا رہا۔ جب اللہ نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ستارہ روشن ہو اور آدم کی اولاد انسان کا درجہ پوری دنیا میں بلند ہو، تو روح کو حکم ہوا کہ آدم کے جسم میں اتر۔ اس نرم روح نے سخت مٹی میں جانے سے انکار کیا۔ رب کا حکم روح کو پہنچا کہ اے جان اس بدن میں داخل ہو۔ پھر جب وہ آدم کے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو پتھر بنا جسم ماس ہڈی میں بدل چلا گیا۔ جب سینے تک پہنچی تو حضرت آدم نے اٹھنے کا ارادہ کیا، وہیں زمین پر گر پڑے۔ شاید اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ اسی حالت میں حضرت آدم نے چھینکا۔ اللہ کی اور سے الہام ہوا اور کہا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہے۔ اس کریم رحیم نے اپنے رحمت سے فرمایا، یا رحمکم اللہ، اللہ آپ پر رحمت فرمائے۔ یہ اللہ کی رحمت کا پہلا جلوہ تھا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ بہشت سے سجایا جوڑا لایا، حضرت کو پہنایا اور عزت کے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ نقل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرشتے آپس میں کہتے تھے کہ اللہ خاک سے پیدا کر کے جس ہستی کو خلافت کی گدی پر بٹھائے گا تو وہ خدا کے نزدیک ہم سے زیادہ عزیز نہ ہوگا، اور غیب کے جاننے والے کے دربار میں ہم جو دن رات رہتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ پھر حق تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم کو سکھلا دیے۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے جواب نہ دے سکے۔ اپنی غلطی مانتے ہوئے بولے، پاک ہے تو، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے سکھایا، اور تجھ سے بڑھ کر جاننے والا کون ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے آدم کو ظاہری اور باطنی کمال سے آراستہ کیا، اور اس کی عزت کو بڑھانے کے لیے فرشتوں کو جو حضرت آدم علیہ السلام کے تخت کے چاروں طرف لائنوں میں ادب کے ساتھ کھڑے تھے، حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ابلیس کے اس انکار سے اس پر پھٹکار پڑی اور اسے فرشتوں کے ساتھ سے الگ کر دیا گیا۔ حضرت آدم بہشت میں رہنے لگے۔ طبیعت میں آیا کہ کوئی ان کا ساتھی ہو، زندگی کا ساتھی۔ حضرت پر خواب نے غلبہ کیا۔ اسی بیچ اللہ نے اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کے پہلو سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ جب وہ جاگے تو دیکھا کہ ایک پاک صاف عورت بیٹھی ہے۔ بہت خوش ہوئے
पूछा कि तू कौन है? हज़रत हव्वा ने कहा कि मैं तेरे बदन का हिस्सा हूँ। अल्लाह ताला ने तेरी पसली से मुझे पैदा किया है। कहा जाता है कि हज़रत हव्वा बहुत ही खूबसूरत थी। हज़रत की खुशी का ठिकाना न था। हज़रत हव्वा को पाक कर सजदा शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला की तरफ से अर्श के उठाने वालों और आसमानी फरिश्तों के सामने इन दोनों का निकाह हुआ। फिर इन दोनों को हुक्म हुआ कि तुम सब इसी बहिश्त में रहो, जो चाहो खाओ, मगर उस पेड़ के नज़दीक मत जाना। इशारा गेहूं के पौधे की तरफ था। इब्लीस ने आदम को सजदा नहीं किया था और वो निकाल दिया गया था, इसलिए उसे हज़रत आदम से ख़ास तौर से जलन हो गई थी। वो हमेशा ऐसे उपाय सोचता कि किसी तरह आदम को बहिश्त से निकाले। इसके लिए पहले वो मोर के पास गया, उसको दोस्ती की और कहा, मेरी दोस्ती के हक तुझ पर साबित हैं। हम तुम एक मकान में रहते थे। मेरी दरख्वास्त तुमसे ये है कि मुझे अपने बाजू पर बिठाकर बहिश्त पहुंचा दो, ताकि मैं अपने दुश्मन से बदला ले सकूं। मोर ने इस काम के करने से इनकार कर दिया और कहा कि तू ये बात सांप से कह। तब शैतान सांप के पास गया और उसको अपने जाल में फंसा ही लिया। सांप उसको मुंह में रखकर बहिश्त में ले गया। फिर हज़रत आदम और हव्वा के पास आया और रोना शुरू कर दिया। पूछा, क्यों रोता है? उन्होंने शैतान को पहचाना नहीं था। शैतान ने कहा, मैं तुमको नसीहत करता हूँ। मुझको तो तुम्हारे हाल पर रोना आता है कि तुम इस बहिश्त से निकाले जाओगे और ये बहिश्त की नेमतें तुमसे सब की सब ले ली जाएगी और ज़िंदगी की लज्जत के बजाय मौत के दर्द का मज़ा चखेगा। दोनों ने शैतान की जब ये बातें सुनी तो बड़ा गम हुआ। इब्लीस ने कहा, अगर तुम मेरा कहना मानो तो तुमको एक पेड़ बताऊं, अगर थोड़ा फल उसका खाओगे तो हमेशा ज़िंदा रहोगे और मौत की शक्ल कभी न देखोगे। हज़रत आदम ने पूछा, वो कौन सा है? शैतान ने कहा, वही पेड़ है जिसके खाने से अल्लाह ताला ने मना किया है। हज़रत आदम ने इस बात को कबूल नहीं किया कि मैं खुदा की कभी नाफरमानी न करूँगा। जब शैतान ने कसम खाई कि मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, तो भी वो इस नाफरमानी के लिए तैयार न हुए और उठकर चले गए। फिर शैतान ने हज़रत हव्वा की खिदमत में जाकर इस तरह उनके दिल में भी वसवसे डाले और सांप ने शैतान के कहने पर गवाही दी। हज़रत हव्वा ने हज़रत आदम से फरमाया कि सांप तो बहिश्त का खादिम है और वो शैतान के हक़ में गवाही दे रहा है, तो मैं पहले इस पेड़ का लाती हूँ। अगर कोई बात पड़े तो मेरे वास्ते खुदा से माफ़ी मांग लेना, और नहीं तो तुम भी खाओ कि हम तुम दोनों तमाम उम्र बहिश्त की नेमतों को चैन से खाया करें। जन्नत से निकाले गए। कहा जाता है कि अल्लाह ने शुरू ही में तय कर दिया था कि आदम की फरमाबरदार औलाद बहिश्त में और नाफरमान औलाद दोज़ख में जाएगी। अगर सबको जन्नत ही में रहना होता तो दोज़ख कैसे भर जाती और आमाल का हिसाब किताब ही क्यों होता। गेहूं का पौधा भी इसी आजमाइश के लिए रखा गया था, जो उनके बहिश्त के निकाले जाने की वजह बना। उलेमा ने लिखा है कि जब हज़रत हव्वा ने थोड़े से गेहूं के फल खा लिए और उनके कहने से हज़रत आदम ने भी कुछ खा लिए, तो अभी तक हज़रत आदम के मैदे में गेहूं पूरी तरह हज़म भी नहीं हुआ था कि बहिश्त का लिबास जिस्म पर से गिर पड़ा। जिस्म नंगा हो गया। मजबूर होकर इंजीर के पत्तों से
जल्दी जल्दी जिस्म ढांका। हुक्म हुआ कि ए आदम, तेरे नंगा होने की वजह क्या है? कहा, अल्लाह, इसकी वजह यह है कि तेरी मर्ज़ी पर अमल न किया, उस मना किए हुए पेड़ का फल खा लिया। फिर आदम ने यह भी अर्ज़ किया कि यह गलती सांप और मोर के बहकाने और कसम खाने से हुई है, जबकि ये बहिश्त के अमीन और रखवाले हैं। कहा जाता है कि उस वक्त सांप शक्ल व सूरत के एतबार से बहुत ही खूबसूरत था। उस जैसा बहिश्त में कोई जानवर भी न था। अल्लाह ताला ने इस गुनाह की वजह से उसका चेहरा बिगाड़ दिया, मिट्टी धूल को उसका खाना बना दिया और पेट सीने के बल ज़मीन को रगड़ना और छाती को छिलना मुकद्दर हो गया। इसी जुर्म के अज़ाब के तौर पर हज़रत हव्वा और उनकी बेटियों को जन्ने का दर्द दिया, हैज़ माहवारी की गंदगी दी और खाविंदों के हुक्म में रहना और उनकी ताबेदारी करना तय कर दिया। मोर को भी सज़ा मिली, उसकी भी शक्ल बदल गई। चुनांचे पाँव तो बदसूरती के लिए मशहूर ही हैं। फिर हुक्म हुआ कि सब के सब बहिश्त से निकलो और ज़मीन पर उतरो और आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने रहो। इस तरह आदम, हव्वा, शैतान, सांप और मोर सभी जन्नत से ज़मीन पर ज़िल्लत और रुसवाई के साथ पहुँचे और सज़ा के तौर पर सब के सब अलग रखे गए। रिवायत में है कि हज़रत आदम सरानदीप में, हज़रत हव्वा जद्दा में, शैतान सिस्तान में, सांप अस्फहान में और मोर काबुल में उतारा गया। इसी तरह इब्लिस और आदम की औलाद में हमेशा हमेशा के लिए दुश्मनी पैदा हो गई और क़यामत तक रहेगी। इस वाक़ये के बाद हज़रत आदम ने 40 दिन न खाना खाया न पानी पिया। हज़रत हव्वा की जुदाई से तड़पते रहे, 300 वर्ष तक रोते रहे और तौबा व इस्तग़फ़ार करते रहे। फिर सबसे बड़े रहीम अल्लाह ने अपने मेहरबानी से हज़रत आदम के दिल में ये कुछ कलमे उतारे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहम लनकुन मिनल खासिरीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक व बिहम्दिका अमीलतु सुअन व ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली। ए हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया है और अगर तूने बख्शा नहीं और रहम न किया तो हम ज़रूर ही घाटा उठाने वालों में हो जाएंगे। तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, तू पाक है हर गलती से और तेरी हर पहलू से तारीफ़ है। मैंने एक ख़ता की और मैंने अपने आप पर जुल्म किया, तो तू मुझे माफ़ कर दे। इन कलमों के पढ़ने के बाद हज़रत जिब्रील आए और गुनाह की माफ़ी की खुशखबरी लाए। हज़रत आदम बहुत खुश हुए। इस खुशी में अल्लाह का इशारा पाकर उन्होंने चाँद की तरह 14-15 तारीख के रोज़े रखे। इन रोज़ों से उनके क़ल्ब को इत्मीनान हुआ और जिस्म को राहत मिली। इस दुआ और रोज़े की इसी बरकत की वजह से कहा जाता है कि आदम की औलाद में से जो भी इस दुआ को पढ़ेगा और इन 3 रोज़ों की हर महीने में आदत रखेगा, उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे और उसका दिल जो गुनाहों की मुसीबत में स्याह हो रहा है साफ़ और रोशन हो जाएगा। इसके बाद हज़रत आदम को हुक्म हुआ कि खाना काबा की बुनियाद रखें। हज़रत आदम ने जिब्रील की तालीम से और फ़रिश्तों की मदद से काबे की बुनियाद रखी और हजर अस्वद को, जिसे वो अपने साथ बहिश्त से लाए थे और उसमें अहदनामा और कौल व करार, रोज़े
अलस्त का खुदा ने रखा था, काबे में एक तरफ जमाया। काबा तैयार होने के बाद हज़रत जिब्रील ने हज और तवाफ़ के तरीके बताए। हज़रत आदम इन सब से छुट्टी पाकर हज़रत जिब्रील के कहने से अरफात पहाड़ पर चढ़े। हज़रत हव्वा भी हज़रत आदम के लिए परेशान थी। घूमती फिरती वो अरफात पहुंच गई थी। धूप और गर्मी से उनका रंग भी बदल गया था। दोनों एक दूसरे को न पहचान सके। हज़रत जिब्रील ने एक दूसरे को पहचानवाया। दोनों का मिलन हुआ। फिर दोनों अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक सरांदीप को आए। हज़रत जिब्रील ने गेहूँ, रोटी और लकड़ी पहुँचाई, खेती करना सिखाया। 2 बैल भेजे और दोनों मेहनत मशक्क़त मगर सुकून के साथ रोटी कमाने लगे। इंसानी रूह को पैदा करके शुरू में अल्लाह ने अपने हाकिम व परवरदिगार होने को मनवाया था और फरमा बरदारी का वचन लिया था। इसी को कौल व करार रोज़े अलस्त कहते हैं।